بریٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پولیس رویے کے خلاف اہل علاقہ موجود کو تھانے کے باہر سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین نے ہب ریور روڈ کو مکمل بلاک کر دیا۔ دانیال بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل کراچی کے علاقہ موسکو ہے، کماڑی ڈسٹرکٹ کماڑی میں یہ علاقہ مکین ہے جو ہب ریور روڈ پر احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج پولیس کے خلاف کیا جا رہا ہے، شارع مکمل طور پر بلاک کر دی گئی ہے۔ موسکو تھانے کے باہر جو احتجاج جاری ہے، اس احتجاج کے باعث ٹریفک جام کی رفت معطل ہو گئی ہے، گاڑیوں کی طویل قطاریں بھی لگ چکی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ پولیس کی جرائم پیش افراد کی سرپرستی کے الزام میں یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ پولیس حکام جو ہے وہ موقع پر پہنچے ہیں اور مظاہرین سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ جی راشد، بہت شکریہ دانیال، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ایف آئی اے کو ناظم جوکیو قتل کیس میں ملزم جام عبدالکریم کا نام صوبائی قومی شناختی کارڈ فہرست PLIL میں شامل کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے DG FIA کو لکھے گئے خط میں کہا کہ ملزم جام عبدالکریم کو جوکیو تھانہ میمن گوٹ ضلع ملیر میں FIR نامزد ہے۔ ملزم جام عبدالکریم دبئی میں فرار ہو گیا۔ یہ مقدمہ وسیع تر عوامی مفاد میں اٹھایا جا رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد متعلقہ عدالت میں اس کی موجودگی کو یقینی بنانا ہے۔ خط کے متن میں ملزم کو مذکورہ قتل کیس میں مفرور ہے، اس لیے فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے۔ جام عبدالکریم ناظم جوکیو کے مرڈر میں مطلوب ہے اور وہ دبئی جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مفرور ہیں عدالت سے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ اب اسلام آباد آنے کی تیاری کر رہے ہیں سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے۔ میں نے آج DG FIA کو خط لکھا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ جیسے ہی جام عبدالکریم اسلام آباد لینڈ کریں انہیں اریسٹ کر کے انہیں سندھ پولیس کے حوالے کریں فوری طور سے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی گھناؤنے مرڈر میں مطلوب ہے۔ عدالت جو ہے ان کو ڈھونڈ رہی ہے اور یہ پاکستان سے مفرور ہے۔ اس حالت میں کسی بھی طرح ہم کسی مجرم کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے اس کے لیے خط لکھا ہے DG FIA کو کہ فوری طور سے کارروائی کریں ان کے ارائیول پر۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور گورنر سندھ عمران اسماعیل عدالتی فیصلے سے لاعلم نکلے۔ ناظم جوکیو قتل کیس میں جیالے رکن قومی اسمبلی جام عبدالکریم کے حفاظتی ضمانت کا تحریری فیصلہ CT21 کے سامنے لے آیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق MN جام عبدالکریم کو 3 اپریل تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے جام عبدالکریم کی 25 مارچ کو ضمانت منظور کی۔ عدالت نے جام عبدالکریم کو 3 اپریل تک ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ دوران سماعت جام عبدالکریم کی جانب سے ملازم حمزہ عباسی حفاظتی ضمانت کے لیے پیش ہوئے اور بتایا کہ جام عبدالکریم دبئی سے واپس آ کر عدالت کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ گرفتاری کا خدشہ ہے حفاظتی ضمانت دی جائے، جس پر عدالت نے 3 اپریل تک ضمانت دی۔ تاہم وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور گورنر سندھ عمران اسماعیل فیصلے سے لا علم لگ رہے ہیں، جو ناظم جوکیو قتل کیس میں جام عبدالکریم کی گرفتاری کا اعلان کر رکھا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے شہری رمیز احمد سمیت دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر محکمہ داخلہ سندھ آئیجی متعلقہ DIGs اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس محمد اقبال کلہوڑو کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو شہری رمیز احمد سمیت دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ رمیز احمد 17 مارچ سے لاپتہ ہیں۔ پولیس اور دیگر اداروں کو رمیز سے متعلق تاحال معلومات نہیں مل سکیں۔ لاپتہ شہریوں کو فوری بازیاب کرایا جائے۔ عدالت نے محکمہ داخلہ سندھ آئیجی متعلقہ DIGs اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے پولیس اور دیگر اداروں کو لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ناظم آباد بلاک 5E میں غیر قانونی پورشنز بنانے سے متعلق درخواست پر بلڈر اور SPCA افسران کے خلاف فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں بینچ کے روبرو درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ناظم جو آباد بلاک 5E میں غیر قانونی پورشنز بن رہے ہیں۔ پلاٹ نمبر 36 بلاک 10 میں 5 منزلہ پورشن بنا دیے گئے۔ SPCA کو کارروائی کرنے کو تیار نہیں۔ عدالت نے SPCA وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ 5 منزلہ پورشنز کیسے بن رہے ہیں۔ ایک شہری 50 لاکھ جمع کر کے پورشن لے رہا ہے، جب وہی پورشن گرتا ہے تو نقصان صرف اور صرف شہری کا ہی ہوگا۔ یہ رشوت سے کہیں بڑا جرم ہے۔ عدالت نے بلڈر اور SPCA افسران کے خلاف فوری پرچہ کاٹنے اور DG SPCA کو 6 ہفتوں میں عمل درآمد کرانے کا حکم دیا ہے۔
सिंध हाईकोर्ट में जर्मन स्कूल और औरंगी टाउन की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात केस में प्राइवेट अफराद की जानिब से लीज के दावे पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। केस के समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रफाही ज़मीन है, कैसे अलॉट हो गई। KMC की ज़ाती ज़मीन है, जिसे चाहे अलॉट कर दिए, जिसका दिल चाहता है ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है। इतनी बड़ी अराज़ी पर तो यूनिवर्सिटी बन सकती है। अदालत ने KMC को इलाके का मास्टर प्लान और जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि इंडस अस्पताल ने इस ज़मीन पर अस्पताल बनाने की तजवीज़ दी है। रफाही प्लॉट्स की लीज किसी इनफरादी शख्स को जारी नहीं की जा सकती। ब्रेक के बाद आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में गर्मी बढ़ते ही पानी की चोरी और महंगे दामों फरोख्त में इजाफा हो गया। औरंगी टाउन के मकीन महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। शहर में गर्मी बढ़ते ही पानी चोर माफिया सरगर्म हो गया। मंगोपीर, जंजालकोट, नॉर्दर्न बाईपास पर पानी चोर माफिया ने वाटर बोर्ड की 48 इंच की मरकजी लाइन से चोरी शुरू कर दी। औरंगी टाउन के मकीन कहते हैं कि उनके हक का पानी चोरी करके धड़ल्ले से फरोख्त किया जा रहा है। शहर में गर्मी में इजाफे पर पानी चोर माफिया ने टैंकर और टैंकों के रेट भी बढ़ा दिए हैं। मकीन अपने हिस्से का पानी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, लिहाजा हुकूमत पानी चोर माफिया के खिलाफ एक्शन ले। दूसरी जानिब सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ ही बेमौसम की सब्जियां महंगी हो गईं। शहरी कायद में तलब और रसद की सूरत हाल बेहतर होने के नतीजे में टमाटर, आलू, प्याज समेत बेशतर सब्जियों की कीमतों में कमी और इस्तेहकाम है। रोज़मर्रा पकवान और खानों की तैयारियों में इस्तेमाल होने वाला टमाटर 20 रुपये सस्ते होने के बाद 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है, जबकि आलू, प्याज 35 से 40 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब लौकी, तोरिया, पालक, खीरे समेत दीगर सब्जियों 80 रुपये से लेकर 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही हैं। सब्जी फरोशों के मुताबिक देसी टिंडे की फसल तैयार होने के बाद मार्केटों में फराहमी शुरू हो गई है, जिसके बायस टिंडा 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। बेमौसम की सब्जियों में दर्जा अव्वल मटर 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल, भिंडी 200 रुपये और कहीं कहीं इससे ज़ायद पर फ़रोख्त होने लगी, जबकि गाजर 80 से 100 रुपये तक दस्तयाब है। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि अगर मसला हल करना है तो सियासी कायदीन कहीं के ना खुद इलेक्शन लड़ेंगे, ना अपने बच्चों को लड़ने देंगे। चेहरों की तब्दीली से हालात नहीं बदलेंगे। तफसीलात जुनेद फिरोज की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। कराची में ऑल सिंध ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन सालाना कन्वोकेशन में अपने खिताब में कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि PTI ने जो मुतालबात पूरे किए हैं वो साबका अदवार से ज्यादा हैं। हमें दीवार से लगाने का सोचने वाले नाकाम हो गए हैं। हमने माजी की गलती को ना दोहराया तो हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। मोटे मोटे मशवरे से पाकिस्तान का मसला हल होने वाला नहीं है। अगर कौमी क़यादत समझती है मसला हल हो तो तमाम कौमी कायदीन ये ऐलान करें कि ना तो वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, ना उनके बच्चे इलेक्शन लड़ेंगे। ख़ानदानी सियासत नहीं होने देंगे, पेशावर सियासत नहीं होने देंगे, ख़ानदानी इक़्तिदार का रास्ता बंद कर देंगे। सारी चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत को हमेशा मसाइल से आगाह किया है, लेकिन मसाइल के हल के लिए नीयतों को भी तब्दील करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि चेहरों की तब्दीली से हालात में तब्दीली नहीं आएगी, नीयतों की तब्दीली से हालात में तब्दीली आ सकती है। MQM के रहनुमा आमिर खान और हुकूमत नवीद जमील का कहना था कि MQM पाकिस्तान मजदूर से लेकर अफसरान के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा जुनेद फिरोज, सिटी 21। दूसरी जानिब PTI के 27 मार्च के जलसे के सिलसिले में कराची कैंट स्टेशन से MNA आफ्ताब हुसैन सदीकी और MPA शहजाद कुरैशी की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद रवाना हो गया। PTI रहनुमाओं का कहना था कि सियासत की इस जंग में इमरान खान के साथ खड़े हैं। आदिया न्याज़ की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। खिलाड़ी 27 मार्च को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में मैदान सजाने को तैयार। जलसे में शिरकत के लिए मुल्क भर से PTI रहनुमाओं और कारकुनान की रवानगी का सिलसिला जारी। रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, MPA शहजाद कुरैशी और दीगर की क़यादत में कराची कैंट स्टेशन से काफिला इस्लामाबाद रवाना हो गया। काफिले में PTI की खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। MNA आफ्ताब सिद्दीकी का कहना था कि जलसे में कारकुनान का एक समंदर होगा जो खान साहब के साथ खड़ा होगा। काफिले में हैदराबाद और दीगर शहरों से भी कारकुनान हमें ज्वाइन करेंगे। जी ये तकरीबन 1600 से ज़्यादा हैं, 18 बोगियां हैं, 1600 कारकुनान यहाँ से चढ़ रहे हैं। बाकी हैदराबाद, मेहराबपुर,
नवाब शाह और सक्कर से चलेंगे। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि अवाम का एक समंदर मुल्क भर से इस्लामाबाद के लिए निकल चुका है। कल का जलसा एक मिसाली जलसा होगा। कल जो मंजर नजर आएगा वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। जो हजूम होगा, जो पूरे पाकिस्तान से जा रहे हैं लोग, आप यहाँ का जज्बा देख लें। कल जब गाड़ियाँ रवाना हुई थी उस वक्त का जज्बा देख लें। ये तो सबसे दूर मकाम है इस्लामाबाद से कराची। जब यहाँ ये जज्बा है तो झेलम में क्या जज्बा होगा। इस्लामाबाद जलसे के लिए रवानगी के मौके पर पीटीआई के कारकुनान भी खासे पुरजोश दिखाई दिए। आज आप लोग देख रहे हैं कि किस जोश और खरोश से अवाम यहाँ मौजूद है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग निकले हुए हैं और ये वक्त है निकलने का। अवाम बाशऊर हो चुके हैं। यहाँ पर इसलिए इतनी धूप में, इतनी गर्मी में मौजूद हैं कि हमें हक और सच का साथ देना है। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो इस मुश्किल घड़ी में इमरान खान के साथ खड़े हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हादिया नाज, सिटी 21। पीटीआई सिंध के सदर और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने अमर बिल मारूफ जलसे के हवाले से बयान में कहा कि अमर बिल मारूफ का मतलब हक के साथ खड़े होना और बातिल के खिलाफ जंग करना है। 27 मार्च फैसले का दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान का वफादार, ईमानदार, खुददार शख्स है। कल 27 मार्च 2022 ये फैसले का वक्त है। आपके ज़मीर की आवाज़ को सुनने का वक्त है। क्या आपका ज़मीर उस शख्स के साथ खड़ा होता है जो कि एक वफादार, पाकिस्तान का खुददार, जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, ईमानदार शख्स जिसने इस्लामोफोबिया को यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा के पूरी दुनिया में आलम इस्लाम की जंग लड़ी और लड़ रहा है? या इन तीन चूहों के साथ आपने खड़े होना है? ये तीन चूहे जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का पैसा चोरी करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके गंद करना चाहते हैं इस मुल्क में, ये पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए कल मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, बुजुर्गों से, माओं से, बहनों से, बच्चों से, भाइयों से, हर एक से, कि 27 मार्च को खाली पाकिस्तान की तारीख का नहीं बल्कि बड़े सगीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा और पावर शो बनाएं, ताकि बता सकें पूरे आलम इस्लाम को कि पाकिस्तान के शहरी इमरान खान के साथ खड़े हैं जैसे कि आलम इस्लाम आज खड़ा है। शुक्रिया। यहाँ पर कुछ खबरें शामिल करते हैं। मुआशी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से मुआशी बेहतर अदाद-ओ-शुमार पर एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखी गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 521 पॉइंट्स इजाफे से 43,551 की सतह पर पहुंच गया। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 521 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1.21% इजाफे से 43,551 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 84 अरब रुपए का इजाफा हो गया। गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले शेयर्स के हजम में 17.7% कमी हुई। मार्केट में एक हफ्ते में 18.71 अरब रुपए मालियत के 57.49 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। बेहतर मुआशी एदाद-ओ-शुमार पर गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 100 इंडेक्स में रिकवरी देखी गई। जनवरी के मुकाबले फरवरी में करंट अकाउंट खसारे में नुमाया कमी ने मस्बत असरात मुरतब किए। जनवरी के 2.53 अरब डॉलर के मुकाबले में फरवरी 2022 में करंट अकाउंट खसारा 54.50 करोड़ डॉलर रहा। जनवरी में बड़े पैमाने की सनतों की नमू 4.2% रहना भी मस्बत साबित हुआ। मुल्क में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पर सरमायाकारों की दिलचस्पी कम रही। अशरफ खान, सिटी 21।